welcome. We've been on the road to 2014, traveling through the key constituencies of this election, bringing you interviews with the big newsmakers on the campaign trail, as well as special reports from on the ground and voices that you never hear in the studios of Delhi. Over the next 60 minutes, we'll take you across the country to bring you a sense of what's happening on the ground in India's political heartland. Also coming up on the program tonight, he's the man who was riding with Narendra Modi as he went to file his nomination in Varanasi. He's widely described as being the second most powerful man in the BJP. Amit Shah is joining us for this exclusive interview from the campaign trail, a rare interview on the man who is considered the closest to Narendra Modi. गांधी परिवार की तरफ से एक बयान आया है प्रियंका गांधी वाड्रा का कि बीजेपी हम लोगों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एक पर्सनल हमला कर रही है। दूसरी तरफ आज अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग पे कहा कि पर्सनल हमले तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा आज रायबरेली में कैंपेन करते हुए फिर स्नूपिंग का एलिगेशन लगाया, मोदी जी का नाम लिए बिना ये बात की। चलिए, तो इसके बारे में आप क्या? मैं इस तू मैं नहीं पढ़ना चाहता। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको करप्शन के रेफरेंस में उठा है, कोई पर्सनल अटैक नहीं है। Let's get started now with our journey across India, our journey through India's political heartland. One of the most watched states in this election is Punjab. The question that is being asked in Punjab is which anti-incumbency will be stronger? Will it be the discontent that is coming out in several parts of the state against the ruling Akali Dal government? Or will the BJP manage to keep the focus on the anti-incumbency with the central government, the outgoing UPA government? That's the big question that is at the heart of the Punjab mystery. And one should also say there is also the Aam Aadmi Party factor in several seats of Punjab that people are talking about. Let's start with one constituency in Punjab that the entire country is watching, Amritsar. Amritsar, of course, is Arun Jaitley versus Amarinder Singh. And Narendra Modi has also campaigned in Amritsar, asking people to vote for Mr. Jaitley, whom he says will have a key position in the next government were the BJP to win. But is this a tough fight? Is this a fight too hard to predict, too hard to call? Captain Amarinder Singh certainly seems confident that he has the upper hand. From the ground, this election that the country is talking about through the eyes of the people of Amritsar. The gentle strains of the Gurbani at one of the world's most serene places of worship. Today, in striking contrast to the raucous noise of political beats. Amritsar, the city of the Golden Temple, now in the news for a glittering battle. A constituency where 65% of the population is Sikh and where Navjot Singh Sidhu won by only 6,000 votes in 2009 has turned into one of the keenest, most unpredictable battles of 2014. Arun Jaitley Jindabad! Arun Jaitley Jindabad! Between a man whom the Punjab Chief Minister says could be the next Deputy Prime Minister and the state's former Chief Minister who can afford to be both irreverent and take political risks. Between the BJP campaign firmly focused on the national mood and the anti-incumbency against the Congress at the centre, and the Congress campaign that draws attention back to the anti-incumbency they believe is faced by the state's Akali government. It is an election of competing discontentment. आजकल किताबां छप रही हैं, लिख रहे हैं मनमोहन सिंह जी के सलाहकार कि कोई फैसले लेने की हिम्मत उन्हां च नहीं सी, उन्होंने अधिकार अख्तियार ही नहीं। ये फैसले जड़े सन उन्होंने सुना दिते जाते सन, उन्होंने केवल उन्होंने कबूल करना। इस हालात च चुनाव सब तो पहले
The Arun Jaitley versus Amarinder Singh battle is turning out to be one of the most headline-grabbing fights of campaign 2014. While the BJP and the Akali Dal would like to keep the focus on the stature and the profile and the national relevance of Arun Jaitley, presenting him as a possible deputy prime minister or at the very least a finance minister if the BJP comes to power, Amarinder Singh is trying to keep the focus on local issues, hoping to tap into what he believes is discontent with the Akali Dal government. In this knockout battle of heavyweights, the punches are also sharp and unapologetic. ਇਹ ਮਾਝਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਝਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਤਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟਲੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਝਾ ਤੇਜ਼ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜ He thinks we should have decorum like the British Parliament or Indian Parliament, and Indian Parliament, of course, it's a different scenario. But anyway, where you have tusi karo and talk this sort of thing, this cannot happen in Majha. Phir tu jaake aur ladna kya? Significantly, in the last election, while winning overall on the strength of rural votes, the BJP lost Amritsar city by 50,000 votes. And it is here that the contest today is the fiercest. Arun Jaitley's entire extended family, including his wife Sangeeta, who was born in Amritsar, are now systematically targeting small groups of voters as part of outreach programs that take them door to door, house to house. ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖੀਆ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿਓ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲੇ So in such a high voltage battle, will Amritsar vote for the candidate or for the party? Party would mean that there is appearing in press or in social media and so many things about these parties also. Many times personalities also come there. But ultimately, even if you count party as principal, primary, or count candidate as primary, ultimately it's a discourse of discourse of issues which matters. There are those who are backing the candidate without supporting the party, like veteran journalist and commentator Kuldeep Nair, who is in town to support Arun Jaitley. He is not only a very, according to me, the best candidate. He has well-read, honest, brilliant and good reputation. But more than that, as I said, he is a part of my family. And on Mr. Modi, where do you come in? Because a number of the votes that Mr. Jaitley asked for will also be in the name of Mr. Modi. Yes, this is collateral damage. Narendra Modi is also expected to campaign for Arun Jaitley next week. And the BJP calculation is that between the momentum for Modi and the national profile of Jaitley, widely recognized as the number 2 man in the BJP, Amritsar will vote their way. At the city's most famous and mouth-watering aam papad redi, Lubhaya Ram and Sons, the debate around which candidate to back becomes a full-blown fight in true Punjabi style. यहाँ पर अकालियों का ज्यादा असर है कि मोदी का? मोदी साहब का बिल्कुल जी। और आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अकालियों की वजह से शायद हार जाए। अकालियों की वजह से हार जाए? हाँ जी। मतलब मोदी क्योंकि यहाँ पे हाउस टैक्स यहाँ पे उनकी वजह से लगा, प्रॉपर वो जो टैक्स लगा है, हाँ। अपने घर के किराए दे रहे हैं, क्या फायदा? अच्छा, ये सोच के थोड़ी ना अपने घर बनाए थे कि अपने घर का किराया पर जो लोग कहते हैं कि पूरी हवा एक मोदी की चल रही है, उसका असर होगा यहाँ? नहीं होगा। होगा नहीं होगा? नहीं होगा। केंद्र में नहीं होगा। केंद्र में 330 सीटें लेकर आएगी मोदी सरकार। और आप कहते हैं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जो गरीब जनता है ना हमारी जी, रेत का, पेट्रोल जी, हर चीज का कोई मजा नहीं है। तो जो गरीब है वो अकालियों से नाराज है। और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। आप कह रहे हैं गरीब अकालियों से नाराज नहीं है? हाँ। अकाली है या कोई कांग्रेस है, ये कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन जो सब जगह मोदी के पोस्टर लगे हैं। हाँ। किसी टाइम रेत की ट्राली सैकड़े के हिसाब से 300 रुपए आती थी, अब 4000 रुपए है। क्या गरीब घर बनाएगा? सैकड़ा पूरा नहीं होता जी उसमें। सैकड़ा घर पूरा नहीं होता उसमें।
तो क्या किसी ने घर बनाना है? मजदूर तो मजदूरी के काबिल नहीं रहा, उसको मजदूरी नहीं आजकल मिलती, वो भी भूखा मर रहा है। अरे भैया मोदी सरकार आएगी 100 रुपए ट्राला हो जाएगा रेट। वो तो टाइम बताएगा ना। कहते हैं जैसे कैप्टन बादल ने कहा था कि 5 रुपये किलो आपको आटा देंगे, 10 रुपये किलो दाल देंगे, वैसे इलेक्शन के टाइम आके बोल देते हैं 1 रुपए किलो मिलेगा, 2 रुपए। ये बताओ आप क्या कहेंगे? I think as residents of Amritsar, we are the luckiest people that Arun Jaitley has come to Amritsar. Why lucky? Because he is a central leader who can solve all the problems of Amritsar. You see Pandari Bridge. Railways doesn't give us permission. If he becomes our MP, it will take him 5 minutes to get there. So you're saying because he's going to be a powerful national leader, it will be good for Amritsar. If he loses, we will be the unluckiest people. और अमृतसर के साथ मतलब we in our lifetime we can't get a better chance than Arun Jaitley play. बाजी देखो जरा जेटली भी आए हैं लेकिन सानू अकाली वाले ने करना नहीं कराया कुछ। ऊपर चले गए थे, उन्होंने सारा कुछ ठीक कर दिया। गाली समझे जरा बात वो नहीं करना। सिद्धू साहब जी आए थे, उन्होंने सब कुछ करना चाहा। So as you can see here at this really famous Aam Papad stall in the heart of Amritsar on Lawrence Road, opinions extremely divided. It takes less than a minute to trigger an absolutely feisty debate here. The food is of course still in focus. Everyone's having their Aam Papad, but they're divided. They're debating. Jaitley as a national leader, they say, will be good for Amritsar. Others are angry with the Akalis and say, give Congress a chance. Also throwing his hat in the ring is a well-liked and respected eye surgeon, Dr. Daljit Singh, contesting on an Aam Aadmi Party ticket. You could say that they are heavyweights, so they move slowly. We are lightweight, we travel often and fast, so that's an advantage to us. Outside the city, in the villages, or as the Punjabis would say, in the pind, the Akalis are confident of their base in the 4 assembly constituencies here. It is here where there is plenty of support for the BJP among the Jat Sikhs that the captain will have to channel all his energies. Most people we meet here do accept that this is a tagdi ladai, a battle so tight that they won't forecast who will win. अमरिंदर सिंह और जेतली के बीच तो बराबर की चोट होगी, यार 2000 की इधर उधर की बात बराबर की चोट होगी। आप क्या कहेंगे सरदार जी? बराबर की चोट आप क्या कहेंगे? यहाँ पे रूरल एरिया में और सिटी में अगर कंपेयर करें तो इश्यूज कैसे अलग है? Issues are almost same. Almost issues की प्रॉब्लम नहीं है. The only thing is या रूरल में like drug addiction is law, ठीक है. So कुछ देखा जाए तो अकालियों का ही काम है. तो एडवांटेज किसका है इस चुनाव में, अरुण जेटली का कि अमरिंदर का? You never know. This is luck game. लग गया। कोई चक्कर नहीं कि झाड़ू भी आ जाए. It's no big deal. किसी का पता नहीं। Even cricketers are now bowling googlies in the Amritsar field, whether it's a sulking Sidhu refusing to campaign or a Bishan Singh Bedi arriving in the city. In the Punjabi punch of Amritsar, both sides are hitting hard, making it even harder for bookies to bet on this one. In Amritsar, with Ruby Dhingra, Noman Siddiqui, Manoj Thakur and Manu Nair, Barkha Dutt for NDTV. Moving our focus now to Uttar Pradesh and Lucknow. Lucknow, of course, is Rajnath Singh in contest with Rita Bahuguna Joshi. But Rajnath Singh has also grabbed the headlines because of his meeting with top clerics, both Shia and Sunni. After this meeting, one of UP's most prominent clerics, Maulana Kalbe Jawad, told NDTV in an exclusive interview that while Shia Muslims especially were still scared of Narendra Modi, they thought Rajnath Singh reminded them of Atal Bihari Vajpayee. From Lucknow, why is Rajnath Singh invoking Vajpayee? The importance of being Vajpayee in our constituency report from Lucknow. In the ancient city of Nawabs, the BJP has been the ruler since the 90s. And one man remains the uncrowned king long after he has faded from active politics. For Lucknow, Atal Bihari Vajpayee, a 5-time member of parliament from here, can still do no wrong.
The BJP's campaign everywhere else in India is all about Narendra Modi as its future. But here, the party's own president, in his avatar as Lucknow candidate, also repeatedly harks back to the past. A raucous welcome awaits Rajnath Singh at Lucknow Civil Court as lawyers push and jostle to get a glimpse of the man who could be their next MP. The slogans are telling, not just Ab Ki Baar Modi Sarkar, but also Atal Bihari Vajpayee Zindabad. And Rajnath's own speech is littered with references to the BJP's former Prime Minister. देश को चलाने के लिए ऐसे केवल अर्थशास्त्री नहीं चाहिए, बल्कि देश को चलाने के लिए यथार्थ शास्त्री चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी यथार्थ शास्त्री। लखनऊ की जो एक हेल्दी ट्रेडिशन है, जो स्वस्थ परंपरा है, उस स्वस्थ परंपरा को कायम रखने में और उसको और अधिक स्ट्रेंथन करने में, उसको मजबूत बनाने में जितनी भी अपनी भूमिका निभा सकता हूं, परमात्मा जो भी सामर्थ्य देगा वो मैं अपनी तरफ से मैं करने की पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा। जीतेंगे भाई जीतेंगे, राजनाथ सिंह जीतेंगे। To cast himself in Vajpayee's mold in a historically multicultural, multi-religious constituency is clearly Rajnath Singh's aim. Even his chief campaign manager is Vajpayee's former personal assistant, Shiv Kumar. So whether it's prayers at the city Gurdwara or garlanding Dr. Ambedkar's statue and attempting an outreach with the Dalits, the BJP party president is seeking a Vajpayee acceptability and a softer image for himself. So what will be closely watched is how Lucknow's 4.5 lakh Muslims vote. In the age of Modi, will they consolidate behind the Congress candidate Rita Bahuguna Joshi, who lost by 40,000 votes in 2009, or will their vote get divided? It was in 1991 that the BJP first won the seat of Lucknow when Atal Bihari Vajpayee ran from here. After that, of course, Vajpayee went on to become a 5-time member of parliament from Lucknow. Vajpayee, of course, remains the gold standard for leadership in the BJP. So it's no surprise that Rajnath Singh has invoked Vajpayee's name as he began his campaign here. The big question, of course, is how the Muslims of Lucknow will vote. Constituting over 20% of the electorate here, they were happy to back Atal Bihari Vajpayee. But in the Modi era, will they back Rajnath Singh? Following again in Vajpayee's footsteps and in a move both controversial and atypical for the BJP leadership, Rajnath Singh even met every Shia and Sunni cleric that matters in Lucknow. This happened days after the BJP called Sonia Gandhi communal for a similar meeting with a Shahi Imam in Delhi. जब सोनिया गांधी इमाम बुखारी से मिली तो बीजेपी की बड़ी क्रिटिसिज्म आई, क्योंकि उसके बाद इमाम बुखारी का बयान भी आया कि सेक्युलर वोट, जिनको उन्होंने सेक्युलर वोट माना, वो स्प्लिट नहीं होना चाहिए। इस मीटिंग में और उनकी मीटिंग में क्या फर्क है? नहीं, मैंने कोई अपील नहीं की। इलेक्शन के बीच में आप इनसे मिलते हैं तो पॉलिटिकल एक तरह से कॉन्टेक्स्ट तो आ ही जाता है। जो कुछ भी उससे जो कुछ भी इन्फ्लुएंस ड्रा करना हो कोई कर ले, लेकिन मैंने ये नहीं रिक्वेस्ट किया कि पूरी कौम के लिए आप फतवा जारी करिए, ऐसा मैंने नहीं किया है। वह अपने मजहब के, अपने धर्म के एक मानिंदा लोग हैं, उनके गुरु हैं, उनके मौलवी हैं, जो कुछ भी हैं, बस उनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए मैं गया था। The morning after, he faced the charge of hypocrisy from the Congress. But he had achieved his purpose. One of the most influential Shia clerics, Maulana Kalbe Jawad, said Muslims remain scared of Modi, but Rajnath, he said, is like Vajpayee. वाजपेयी जी का शहर है लखनऊ। अब यहाँ पर जो शिया मुसलमान है, इन द पास्ट दे हैव सपोर्टेड वाजपेयी जी। अभी मोदी जी के लीडरशिप में पार्टी का कैंपेन चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से वाजपेयी को बैकिंग मिली थी मुसलमान तबका, उसी तरह से राजनाथ सिंह या आज की बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं? राजनाथ सिंह साहब की इमेज जो है बहरहाल वो वैसी इमेज बन रही है जैसी वाजपेयी जी की थी, क्योंकि पहले बहुत खतरा था जब इनकी हुकूमत बनी है कि साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके बाद अब जमीनी हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जो अच्छे ताल्लुकात हुए वो उस वक्त हुए कि जब वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर थे।
तो हम तो समझते हैं कि राजनाथ सिंह साहब जो है वो तकरीबन उसी लेवल पर पहुंच रहे हैं जिस तरह से हमारे वाजपेयी जी थे। और नरेंद्र मोदी? नरेंद्र साहब के सिलसिले में थोड़ा मुसलमानों को थोड़ा सा अपने उससे खौफ तो डर महसूस होता है उनसे। डर महसूस होता है उनसे, लिहाजा हम तो समझते हैं कि राजनाथ सिंह साहब जो है वो इस सिलसिले में जो है वो ज्यादा बेहतर साबित है। The BJP may not have given a single Muslim a ticket in UP and has given only 5 Muslims tickets nationally. But in the old city, they tell us, in Vajpayee's time, Muslim clerics even read the Quran for him after his victory in 2004. Mr. Atal Bihari Vajpayee was a different person. He was a man who was loved by the citizens of Lucknow because of his personality, because of his individuality. And none other than Mr. Vajpayee could be that popular in Lucknow, whomsoever he may be. When it comes to the Muslim voter, invoking Vajpayee's legacy becomes all important for Rajnath Singh, especially to counter the lingering wariness around Narendra Modi. First of all, you know, Rajnath Singh and Atal Bihari Vajpayee are two different species. You know, they are two different human beings. Both of them are BJP, and BJP is supported by the RSS, but the attitude towards politics is slightly different. Vajpayee was a very local person. He was a thorough Lucknowite, steeped in the Ganga Jamna Tehzeeb. He would never say, like the present leadership of the BJP, that says, you know, ye hamari parampara hai aur ye nahi hai. In Lucknow, it is under the Ganga Jamna Tehzeeb, both the pagdi and the skull cap is our parampara. At Lucknow's oldest tea stall, Sharma Tea Corner, the owner still remembers the day Vajpayee dropped in for a samosa. मैं तो यही मानूंगा वाजपेयी जी का ज़्यादा असर होगा कि उनकी बहुत मेहनत की उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ये था जैसे कि बीज बो देता है जमीन के अंदर, अपने आप को बो दिया है लखनऊ के अंदर, वही पनापने उन्हीं की वो है। जीतेगा कौन? राजनाथ जी जीत जाएंगे, उम्मीद तो पूरी है वाजपेयी जी की वजह से। बिल्कुल, द क्रेडिट गोज टू वाजपेयी जी। In Lucknow, at least, the battle cry is not just "Ab ki baar Modi Sarkar," but also "Vajpayee se sabse zyada pyar." And Rajnath Singh is hoping to inherit that legacy as he creates a position for himself in national politics post-2014. In Lucknow, with Ruby Dhingra, Numan Siddiqui, Manoj Thakur and Manu Nair, Barkhadat for NDTV. And finally, our ground report from Varanasi. Varanasi, of course, grabbed the headlines this week for the massive mega roadshow that Narendra Modi pulled off as he proceeded to file his nomination papers from this constituency. But Varanasi, of course, is also where Arvind Kejriwal of the Aam Aadmi Party and Ajay Rai of the Congress are up against Mr. Modi. As Mr. Modi rode through the streets of Banaras with Amit Shah by his side, the BJP is confident that Mr. Modi will sweep this election. The others are saying it will not be such an easy ride. From the ground, from Varanasi's ghats, we began a political journey. Banaras by boat, Banaras through the eyes of its residents. What they think will happen in this election, voices from the ghats of Banaras. At 4:30 a.m., just before first light, the waters of the Ganga are still gentle, shimmering under the soft light of a fading moon. As the boatman takes us up the Ganga river, past the Manikarnika Ghat, a sacred spot for cremations, this image of the end of life is soon replaced by the life-giving force of the sun rising. And as the day breaks, the ghats of Banaras are already alive with the sound of prayers, and in this election season, the sound of politics. At the Dashashwamedh Ghat in Banaras, the beginning of a new dawn. As the sun rises, the morning Aarti offers prayers to the holy Ganga. Banaras, of course, represents the eternal cycle of life and death. It is where people come to die in the belief that they will attain moksha. But as a new dawn rises here,
In Banaras, in many ways, the beginning of this new day is also a metaphor for a city that has become the political capital of campaign 2014, a city that is now anticipating a new political beginning. It's not yet 5 a.m., but at the Dasashwamedh Ghat, the debates are already intense and animated. 12,500 करोड़ रुपया मोदी इस इलेक्शन में खर्चा कर रहे हैं। किसका पैसा है? कहाँ से पैसा आया? मेरा पैसा है। मेरा पैसा है तो कौन भरेगा? जनता भरेगी। जनता भरेगी। मजा ले जनता भरे। मजा उले आओ, हवाई जहाज घूमे, अब जनता भरेगी। हवाई जहाज से कौन नहीं घूम रहा है? हेलीकॉप्टर से कौन नहीं जा रहा है? आज कौन नहीं जा रहा है? इतना घूम रहे हैं, अभी इलेक्शन का पूरा दौर बाकी है। 50 लाख रुपया इलेक्शन में वो खर्च कर रहे हैं, उनका बाहर कल का छोकरा जो आया हुआ है, उसने क्या किया ये बताइए मुझे। स्टैम्प पेपर पे लिख करके देता हूँ कि 272 सीट बीजेपी ले जाएगी और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मोदी का जीतने का चांस ज्यादा है ना। Here a group of Modi supporters and a Kejriwal loyalist are locked in a fierce war of words, which finally ends in a wager by the supporters that come counting day, Modi will leave his opponents embarrassed. मैं तो ये लिख करके आपको दूंगा कि कल के डेट में 16 मई को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखिएगा कि सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। In the city known as Shiv Ki Nagri, Lord Shiva's abode, we meet a Prabhat Pheri group, Banarsis, all Shiv devotees, morning walkers, seen every day at the crack of dawn, making their way across the different ghats. We walk with them to see the election through their eyes. मोदी जी एक अंधेरे में रोशनी की तरह निकल करके आए हैं समाज को उत्थान करने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए। गुजरात के ही नहीं, अब वो राष्ट्रीय नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता है, इसलिए काशी जैसे पवित्र नगरी को वो कभी नहीं छोड़ेंगे और सारे विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। Down the steps of the ghats, a boat has just brought in a newlywed couple, family in tow, to seek blessings for their marriage at a special Ganga Puja. The wife shies away from speaking to us, but the new groom is clear on what Banaras needs for the oldest living city in the world to have new infrastructure and modern amenities. मुझे विकास चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए। मुझे विकास चाहिए, तो कौन देगा आपको विकास? मुझे मोदी जी विकास दे सकते हैं, मेरा विश्वास है। अच्छा ये बताइए, यहाँ भी तो पहले जोशी जी थे, बीजेपी के ही थे, लोग उनसे तो काफी नाराज लगते हैं। लेकिन व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी ने विकास किया है गुजरात का, तो आपको लगता है वो यहाँ भी वही करेंगे? यहाँ भी विकास करेंगे। बनारस को विकास की ही जरूरत है। In a seat where the BJP's Murli Manohar Joshi won by a margin of only over 17,000 votes in 2009, discontented Banarsis tell us, had he contested this time, the BJP would have lost. We leave the always bustling Dasashwamedh Ghat for the quieter, smaller, less frequented banks of the Ganga River. At the Chaucity Ghat, next to the Rana Pratap Mahal, young men and teenagers are enjoying the cool of the water as a respite from both the weather and the heat of politics. This ghat is next to a Muslim weavers' colony, the craftsmen for the magnificent Banarsi sari, who in a long tradition of syncretic interdependency have always sold to Hindu retailers. Their vote is crucial in a constituency where over 15% of the electorate is Muslim, but could be badly split among multiple anti-Modi contestants. Among these men, there is a wariness about talking openly about the elections. Many tell us, in terms of winnability, the choices for the Muslim voter in Banaras are limited. They say it's a seat that always goes the BJP's way. आप लोग यहाँ क्या समझते हैं? आपकी बिरादरी में लोग क्या समझते हैं? अभी हमारे बिरादरी के लोग कुछ अभी कह नहीं रहे हैं। अच्छा, आपने फैसला नहीं किया? अभी कोई फैसला नहीं, हमारे बिरादरी का अभी सोच एकदम चुनाव से अलग है।
तो यहाँ पर मैं पूछूंगी, जो लोग मोदी जी के साथ है वो हाथ उठाइए। आप लोग मोदी जी के साथ है, और जो लोग केजरीवाल जी के साथ है वो हाथ उठाइए। तभी यहाँ कुछ हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ की फीलिंग थोड़ा इस टाइप की है कि कोई खामोश रहना ही पसंद करते हैं, खामोश के रहना पसंद। जी। Up the steps of the ghats, and it's time to weave our way past the pilgrims, the tourists, the shopkeepers and the local residents. The streets are choked with people and traffic, and a rickshaw is often the best way out. We see several rickshawalas sporting an Aam Aadmi topi. हफीज भाई, आप ये बताइए, आपने केजरीवाल जी की पार्टी की टोपी पहनी हुई है, आपने क्यों फैसला किया उनको सपोर्ट करने का? इस शहर में तो सब मोदी जी की बात कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी की बात कुछ आदमी कर रहे हैं। जी, आपको लगता है कि उनको जीतने का कोई चांस है? पूरा संभावना है। अच्छा, रिक्शा वाले काफी साथ में आम आदमी पार्टी के, आम आदमी के साथ है। पर एक बात बताइए, जब राहुल गांधी यहाँ आए थे वो भी रिक्शा वालों को मिलके गए, तो कांग्रेस का कोई चांस, कांग्रेस को आप लोगों ने नहीं दिया समर्थन? नहीं, कांग्रेस के समर्थन नहीं दिया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? पार्टी बढ़िया है, पार्टी अच्छी पार्टी है, पार्टी बढ़िया है। Comments that should come as welcome news to Arvind Kejriwal as he files his nomination and attacks both Rahul Gandhi and Narendra Modi for what he calls helicopter democracy. बनारस के लोगों को तय करना है कि हमें इस देश के अंदर किस तरह का जनतंत्र चाहिए। क्या हमें हेलीकॉप्टर वाला जनतंत्र चाहिए? But in many ways, the question being asked is whether this contest is now all about Modi versus the rest. As the sounds of prayers and politics come together in Banaras, often in a deafening crescendo, the city that Mark Twain called older than history, older than tradition, older even than legend, awaits a new future. This time in the hope that the national gaze will not turn away once the polls are over. In Banaras with Manoj Thakur, Manu Nair, Numan Siddiqui, Ruby Dhingra, Prafulla Mishra and Ajay Singh, Barkha Dutt for NDTV. And now time for our big exclusive interview from the campaign trail. We all saw those images. The man riding right next to Narendra Modi was Amit Shah. He is the man described to be the second most powerful man in the BJP today. And were the BJP to win, he will have a key role in the power establishment. He's also the architect of the BJP's Uttar Pradesh plan, a state where opinion polls say that the BJP will or could do remarkably well. A man who is basically working on the premise that for Narendra Modi, the route to Delhi passes through Lucknow and Varanasi. 2 hours outside Varanasi, we bring you this exclusive interview with Amit Shah on the campaign trail. He is now known as the second most powerful man in the BJP and seen as the master strategist of the BJP's campaign in Uttar Pradesh, a state considered crucial for Narendra Modi's national plans and for him to become Prime Minister. Joining us now here in Chandoli on a day when he has successfully managed to lure yet another leader into the BJP camp is Amit Shah himself. अमित शाह जी, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, ओपिनियन पोल तो कुछ ऐसे हैं, हमारे भी रहे, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीट आ सकती हैं। आपका अपना असेसमेंट क्या है? देखिए, मैं आंकड़ों में पढ़ना नहीं चाहता, मगर जहां तक 2 चरण का सवाल है, जहां मतदान हो चुका है, 21 में से 18 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है जी। जहां तक अभी बाकी के जहां प्रचार चल रहा है, 1900 का सवाल है, 4 चरण जो बाकी है उसका सवाल है। मैं अभी इस पर कोई आंकड़ा देना नहीं चाहता। बीजेपी की मिशन 272 है, आपको लगता है कि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगी कि आपको लगता है कि और भी अलायंस की जरूरत पड़ेगी? देखिए, हम 272 से ज्यादा सीटों के लिए लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम 272 से ज्यादा सीट हमारा गठबंधन पाएगा। जहां तक दूसरे दलों के समर्थन का सवाल है, 272 से ज्यादा सीटें भी आती है तब भी देश के विकास में सभी दलों के समर्थन की जरूरत है और इनका जरूर स्वागत करेंगे। जो लोग कहते हैं कि भाई एक तरफ बीजेपी के और नरेंद्र मोदी कहते हैं, उन्होंने कई इंटरव्यूज भी दिए, उन्होंने कहा मेरा जो फोकस है वो विकास पर है, मेरा जो कैंपेन है वो विकास पर है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी विकास की बात करते हैं लेकिन और लीडर हैं जो
हार्डलाइन, एक पोलराइजेशन, एक पोलराइज अप्रोच लेते हैं। आपके साथ जो मुजफ्फरनगर में हुआ, आपने ट्विटर में कहा कि बेस्ट बॉलर्स भी नो बॉल डिलीवर कर देते हैं। क्या हम माने अमित शाह जी कि आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई, वो जो आपने भाषण दिया शामली में वो आपको नहीं देना चाहिए था? देखिए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। जी, मैं सोच समझ कर ठीक बोला था, ऐसा मुझे लगता था। जी, मगर चुनाव अभियान में जो भाषण होते हैं, इसके इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम अथॉरिटी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, तो मैंने इसको स्वीकार किया। जब आपने कहा कि नो बॉल, बेस्ट बॉलर से भी इसीलिए नो तो बॉल कहा डिलीवर नो बॉल हो गया। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। अब मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो ठीक थी, मगर चुनाव आयोग ने कहा तो मैं मानता हूं और सम्मान करता हूं चुनाव आयोग। थोड़ी सोचने के बाद आपको लगा कि आपसे गलती हुई? देखिए, मैंने जो कहना था वो मीडिया को कह दिया और क्लोज चैप्टर है। गंगा जमुना में काफी पानी बह गया। बरखा जी, आप भी इससे आगे निकले। एक और आपसे पूछना चाहूंगी, आपके कुछ भाषण जो वहां हुए, बदला के बारे में तो आपने कह दिया कि मेरा मतलब था कि भाई मैं सरकार जो इनजस्टिस हुई है या जो इनकॉम्पिटेंस हुई है उसके लिए मैं बदला चाहता था। आपने एक बात की, आपने बुचर खानों की बात की। बहुत से लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने उठाई बात कि क्या अमित शाह जी का जो रेफरेंस था वो मुसलमान लोगों के साथ था, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर जो भिखारी लोग हैं वो अब बुचर खानों से करोड़पति बन गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये अमित शाह जी मुस्लिम कम्युनिटी पर अटैक। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य की है, ये गंगा जमुना का प्रदेश है, बड़ी उपजाऊ जमीन यहाँ पर है, पानी की विपुलता है। अगर यहाँ पशुधन ठीक है, पशुधन ज्यादा मात्रा में है, तो पिछड़े वर्ग के लिए कमाई का, रोजगार का साधन बन सकता है। और बूचर खानों के कारण इस पशुधन की कमी अब दिखाई पड़ती है और गरीब ज्यादा गरीब बन रहा है। इस रेफरेंस में मैंने ये बात करी थी। मुझे लगता है कि इसको अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि लोग यही सोचेंगे क्योंकि ज्यादातर मुसलमान ही बुचर खाने चलाते हैं? देखिए, मैंने क्या सोच कर कहा था, मैंने स्पष्ट कर दिया। अगर कोई और कुछ सोचता होगा तो आपकी चैनल के माध्यम से स्पष्टता हो जाएगी। आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने अभी आपका भाषण सुना, यहाँ पर आपने बात की कि भाई अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पाकिस्तान के साथ जो एक सॉफ्ट एटीट्यूड रहा है वो नहीं रहेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा पाकिस्तानी घुसपैठिए हिम्मत नहीं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं वो हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसा कहा। पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं रहेगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। तो क्या समझे आपने ठीक से नहीं सुना। चलिए, बात मानिए आपकी, क्या रहेगी पाकिस्तान की पॉलिसी एक तरह से? देखिए, अभी सरकार बनाने दीजिए, सरकार बन जाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो विदेश मंत्री बनेगा वो ब्रीफिंग लेगा विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ। इतना कॉम्प्लेक्स मामला है जिस पर चुनाव के पहले और जबकि हम अभी विपक्ष में हैं, कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। अच्छा, आपने सुना ही होगा कि एक तरह से अब गांधी परिवार की तरफ से एक बयान आया है प्रियंका गांधी वाड्रा का कि बीजेपी हम लोगों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एक पर्सनल हमला कर रही है। दूसरी तरफ आज अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग पे कहा कि पर्सनल हमले तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा आज रायबरेली में कैंपेन करते हुए फिर स्नूपिंग का एलिगेशन लगाया, मोदी जी का नाम लिए बिना ये बात की। चलिए, तो इसके बारे में आप क्या? मैं इस तुतु में मैं नहीं पढ़ना चाहता। जहां तक रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको करप्शन के रेफरेंस में उठाया है, कोई पर्सनल अटैक नहीं है। तो अब कांग्रेस कहती है कि कोई केस ही नहीं है, अगर केस है तो आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। हम कहां से करें? शासन तो इनके पास है। सरकार हो सकता है आपकी बने, सरकार बनेगी और सारी चीजें सामने आएंगी तो देखेंगे किस तरह की बात है। उमा भारती जी ने एक बयान दिया कि सरकार बनेगी तो रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे, तो इससे आप सहमत हैं? देखिए, एक सेकंड, मोदी जी हमारे अभियान को लीड कर रहे हैं। मोदी जी ने स्पष्टता कर दी है कि विंडिक्टिवनेस के आधार पर कोई काम नहीं होगा। अब मोदी जी जबकि हमारे अभियान को लीड कर रहे हैं तो उनका फैसला फाइनल होता है। आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप इस कैंपेन के आर्किटेक्ट हैं, इस कैंपेन में यहाँ उत्तर प्रदेश में या नेशनली सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए क्या है? बहुत चर्चा होती है कि हिंदुत्व क्या पीछे रह गई, हिंदुत्व मैनिफेस्टो के लास्ट पेज में थी, राम मंदिर राम सेतु लास्ट आखिरी पेज पर आया। आप क्या कहेंगे, कितना वेटेज विकास को, कितना वेटेज हिंदुत्व को? देखिए, सबसे पहले तो मैं कैंपेन का आर्किटेक्ट नहीं हूं। अब मुझे बहुत बड़ा करने का आर्किटेक्ट तो आप हैं। कृपया प्रयास मत करिए। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जहां तक कॉम्बिनेशन का सवाल होता है, इसमें कोई वेटेज नहीं होता। सभी मुद्दे अपनी अपनी जगह पर अपना अपना महत्व रखते हैं और सभी मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी एड्रेस करेगी जो घोषणा पत्र में है। एक क्रिटिसिज्म है कि एक अंग्रेजी में कहावत है गुड कॉप बैड कॉप, कि मोदी जी विकास के बारे में बात करते हैं और उनकी जो बाकी इधर उधर जहां जरूरत पड़े, जैसे कि वेस्ट यूपी में, वहां पर एक पोलराइज्ड कैंपेन चलती है, वहां पर धर्म के बेसिस पर बंटवारा होता है, वहां पर सभी नेताओं ने
आपके भी नेता राइट एक्यूज थे, बीएसपी के भी कादिर राना राइट एक्यूज थे, तो कोई फर्क ही नहीं रहा, एक पोलराइज्ड कैंपेन धर्म के नाम पर हुई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर इस चुनाव को लोगों के सामने रखना चाहते हैं। एक और यूपीए के विफल सरकार है, यूपीए की विफल राज्य सरकारें हैं, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के शासन का समय है और भारतीय जनता पार्टी की सफल राज्य सरकारें। इन दोनों के तुलनात्मक अभ्यास के बाद जनता फैसला ले, परफॉर्मेंस के आधार पर रहे, गवर्नेंस के आधार पर रहे, यही एजेंडे पर हमारा कैंपेन चल रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिन देखें तो ऐसा लगता है कि जो बयानबाजी चल रही है वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में नहीं, वो प्रियंका गांधी वाड्रा और बीजेपी के बीच में चल रही है। मैंने कहा कि आज उनका दोबारा बयान आया। अमित शाह जी, वो बार बार कांग्रेस उठाती है स्नूपिंग की एलिगेशन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कई बार कई चैनलों पे, प्रचार माध्यमों पे इसको स्पष्ट किया है कि एक बड़ी डिमांड खास कर मीडिया ने उठाई थी कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। गुजरात सरकार ने एक जांच आयोग अपॉइंट कर लिया है। गुजरात सरकार का अपॉइंटेड जांच आयोग जब भी मुझे बुलाएगा मैं उसके सामने पूरी बात रखूंगा। अब जबकि आप उसके सामने कमीशन के सामने आप अपनी बात रखेंगे? मुझे बुलाएंगे तो यू विल डिपोज बिफोर द कमीशन? बुलाएंगे, अगर बुलाए तो बुलाएंगे। जब तक न्यायिक जांच आयोग काम कर रहा है, मेरा सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहना उचित नहीं है। आप ये मानेंगे कि ये कैंपेन बहुत पर्सनल हो गई है? आप ये मानेंगे? इस बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, मीडिया 100% कैंपेन के वॉल्यूम में से 2% पर्सनल को उठाकर उछाल रहा है। आप भी आज यही कर रही हैं। क्यों? मैंने क्या बोला जिससे आपको सुनिए ना, 98% जो मेरिट्स की बातें हैं उस पर एक भी सवाल नहीं है आपका। ना करप्शन पे है यूपीए के, ना महंगाई पे है, ना सीमाओं की सुरक्षा पे है। सीमा की सुरक्षा पे तो पूछा मैंने, नहीं, ये पाकिस्तान के रेफरेंस में ट्विस्ट कर पूछा। ना महंगाई पे है, ना महिलाओं की सुरक्षा पर है, ना विफल गई हुई एडमिनिस्ट्रेशन पे है। कोई चीज पर आपका सवाल मेरिट्स पर नहीं है। जो 2% बातें इधर उधर की अगर आती भी है तो उसी को उठाकर, क्योंकि टीआरपी बढ़ाना है, मीडिया दिखाता रहता है। इसके कारण कैंपेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंपेन तो लाखों लोगों के सामने जो बोला जाता है वो लोग सुनते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं और उसके आधार पर अपना मत बनाते हैं। तो आप बताइए, करप्शन की बात करते हैं। आपने कहा करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। मैं मानती हूं आपकी बात की, पूरी जो स्कैम्स रही है यूपीए के साथ वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आपकी सरकार बनती है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो इसके खिलाफ आप क्या कदम उठाएंगे? और उसी सिलसिले में अगर आप मानते हैं कि आपने रॉबर्ट वाड्रा का नाम करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में उठाया, तो आपका क्या अप्रोच? फिर से एक बार आप बात को ट्विस्ट करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा एनडीए का रिकॉर्ड है करप्शन के मामले में, हमारी राज्य सरकारों का रिकॉर्ड है, और दूसरी ओर एक करप्ट सरकार है। दोनों के बीच में लोगों ने सरकार तय करनी है, कौन सी सरकार चाहिए, कौन से व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार चाहिए, कौन से पार्टी के नेतृत्व में सरकार चाहिए। और आप पूछ रही है कि सरकार बनने के बाद आप क्या करेंगे। भाई, अभी तो सरकार बनाने का टाइम है, जनमत बनाने का टाइम है, लोगों को हमारी बात रखने का और लोग स्वीकार करें, इसके लिए हमारा पक्ष रखने का समय है। हम इसी में लगे। कांग्रेस का जिस तरह से प्रचार हुआ है, कैंपेन हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हर पार्टी को अपना अपना कैंपेन अपने तौर तरीकों से और अपने पार्टी के इतिहास के आधार पर करने का अधिकार है। कांग्रेस एक विशिष्ट राजकीय राजनीतिक घराने के आधार पर चलने वाली पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि उनका कैंपेन एक राजनीतिक घराने के इर्द गिर्द ही रहा है। हमारा कैंपेन, हम नीचे से आने वाले लोग हैं, लोगों के बीच में से हमारे नेता आते हैं, लोगों को बीच में से स्वीकृति लेकर हमारे नेता आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा कैंपेन लोगों की समस्याओं के बारे में है। बार बार कांग्रेस की तरफ से क्रिटिसिज्म आता है, ये बीजेपी एक वन मैन पार्टी बन गई है, ये नरेंद्र मोदी की पार्टी बन गई है, ये बीजेपी की सरकार नहीं मोदी की सरकार बनने जा रही है अगर बनती है तो। इस आलोचना के बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए, मोदी तो 12 साल से किसी राज्य के मुख्यमंत्री है ना, ठीक है। मैं आपको पूछता हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? पूरा देश जानता है राहुल गांधी होंगे। आप कल्पना कर सकती है कि गांधी परिवार के अलावे और कोई इस देश का कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है? कौन व्यक्तिवाद की बात कर रहा है? उनको शोभा नहीं देती ये चीजें। तो आप कहते हैं कि उनकी गलती है कि ये इतना पर्सनलाइज हो गया, कि मीडिया की गलती है? आप किसको दोषी ठहराएंगे? मैं नहीं मानता कैंपेन पर्सनलाइज हो रहा है। मीडिया पर्सनलाइज चीजों को ज्यादा उछाल रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जब मोदी जी कहते हैं 2G या जीजा जी, तो मीडिया तो उठाएगी? नहीं, ठीक है, वो भी मुद्दा है, मगर मोदी जी के भाषण में एक ही सेकंड ये होता है
हाँ। बाकी पूरा भाषण 1 घंटे का अलग होता है। तो अमित शाह जी, आप अपने लिए क्या रोल देखते हैं? बहुत से लोग कहते हैं सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन इन बीजेपी, अगर मोदी जी की सरकार बनी तो जरूर ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप अपने लिए क्या रोल देखते हैं और आपकी पॉलिटिकल करियर में जो एक तरह से कंट्रोवर्सीज रही हैं, जो फेक एनकाउंटर्स के केस रहे हैं, डू यू बिलीव कि उनका एक शैडो आपकी आगे वाली राजनीति पर बना देखिए, मेरा रोल अभी मैं जहां बैठा हूं वही है। मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहना चाहता हूं और पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बनाकर संगठन को मजबूत करने का काम किया। अभी तो मेरा फिलहाल रोल यही है। जहां तक आगे का सवाल है, पार्टी जो तय करेगी वो होगा। मेरी प्रायोरिटी संगठन है। बहुत से लोग बनारस में मिले, वो बहुत से चाहते हैं कि भाई यहां से एक हमारा प्राइम मिनिस्टर आए। ये बिल्कुल बहुत से लोगों ने हमें कहा। उनको थोड़ा सा डर है कि अगर दोनों सीट जीत गए मोदी जी, जो कि बहुत मुमकिन है, तो कौन सी रखेंगे, कहीं हमें छोड़ के ना चले जाए। देखिए, मोदी जी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि अपनी सीट का ज्यादा ध्यान रखेंगे। कौन सी सीट छोड़ेंगे वो तो पार्टी बाद में तय करेगी, मगर मोदी को 542 की 542 सीटों पर विकास करना है और जहां विकास कम है, उत्तर प्रदेश, वहां ज्यादा विकास करना है। माना जाता है कि ये जो बनारस की सीट उनके लिए चुनी गई, ये आपका फैसला था, आपकी स्ट्रैटेजी थी कि पूर्वांचल में एक तरह से एक लहर फैले। देखिए, स्वाभाविक है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, जी, तो मेरा एक मत होता है, मगर फैसला पार्टी का है। पार्टी ने सोच विचार कर ये फैसला लिया है और हम मानते हैं कि इससे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में तो फायदा होगा ही होगा, बिहार में भी फायदा होगा। आखिरी मेरे 2 सवाल है अमित जी। बीजेपी में ऐसा लग रहा है मोदी जी बार बार विकास की बात करते हैं, लेकिन जो अंदरूनी एक फैक्शनलिज्म के सवाल बार बार उठते हैं कि मुरली मनोहर जोशी ने कह दिया ये बीजेपी की हवा है, ये मोदी की हवा नहीं है। कहीं माना जाता है कि सुषमा स्वराज जी थोड़ी नाराज बैठी हैं। तो जब आपको सबको संभालना होता है तो आप कैसे संभालते हैं? देखिए, सब संभले हुए हैं, सबने मिलकर मोदी जी को नेता बनाए और सब मिलकर ही देश को चलाएंगे। कुछ तरह की बयानबाजी आई जो मोदी जी ने कंडेम की। गिरिराज सिंह के बयान आए कि भाई जो मोदी के खिलाफ है वो पाकिस्तान। अब मोदी जी ने कंडेम कर दिया, मैं उनसे बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं? सारा कैंपेन प्लानर तो आपकी ही है ना। ऐसा आप मानती है, ऐसा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत छोटा व्यक्ति हूं और इस संगठन का काम करने वाला व्यक्ति हूं। क्योंकि मैं गुजरात से आया हूं, खामखा मुझे बहुत बड़ा बना रहे हैं। नहीं, पर क्योंकि आप गुजरात से हैं, जो गिरिराज सिंह या प्रवीण तोगड़िया के बयान आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूंगा, मोदी जी ने अपना टिप्पणी दे दिया। मोदी जी हमारे प्रमुख नेता है, राष्ट्रीय नेता है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा है वो ठीक है। आप क्या कहेंगे कि आपकी सरकार अपने आप बन पाएगी कि आपको नए अलायंस की जरूरत पड़ेगी? अभी देखिए, हम चुनाव के मैदान में हैं, समर भूमि में है। हम मानते हैं कि हम 272 से ज्यादा सीट हमारा गठबंधन जीतेगा और एनडीए के बलबूते पर ही नई सरकार होगी। अगर किसी सहयोगी की भी जरूरत पड़ेगी तो सभी लोग सबसे बड़े गठबंधन को जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं और सब साथ मिलकर देश का विकास करेंगे। धन्यवाद। And that's it on the show tonight. We'll see you now tomorrow night at 9 p.m. with another episode of On the Road to 2014. From the entire team, thanks for watching. Goodbye.